Dear student, today I am going to teach you a word with a basket written by William C. Douglas. William C. Douglas. I have told you already about William C. Douglas in the previous video. William C. Douglas was a judge of the Supreme Court of United States of America. He had come to India to check the opinion of common people against the official attitude and reports. Here we see first stanza of the lesson. इसको मैं पहले आप लोगों को हिंदी में एक एक शब्द की वर्ड मीनिंग बता दे रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा। I have left New Delhi for the Himalayas. मैंने नई दिल्ली छोड़ दिया हिमालय के लिए। It means the writer was traveling from New Delhi to Himalayas. नई दिल्ली से हिमालय की यात्रा कर रहा है। I was going right for as conjunction जहाँ तक है जहाँ तक as माने जहाँ तक। I was going right for as बरेली by train. The writer जहाँ तक बरेली तक की यात्रा वह ट्रेन से कर रहा है। And then by car to रानीखेत, और फिर बरेली से रानीखेत कार के द्वारा जाएगा। अब रानीखेत का यहाँ कैसे करके परिचय दे रहा है। रानीखेत है क्या? An old British Army hill station, ब्रिटिश जमाने का एक पुराना पहाड़ी स्टेशन है। Located on a 6,000 foot ridge opposite का मतलब दूसरे साइड, रिज माने लगा हुआ विस्तार, 6,000 फुट पे दूसरे साइड से ठीक लगा हुआ, इससे लगा हुआ आगे दिया है 20 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो पैक्ड हिमालय। बर्फ से आच्छादित, पैक्ड मतलब टोपी, तो बर्फ से आच्छादित हिमालय के विस्तार से सटा हुआ 6,000 फुट की ऊंचाई पर 120 मील के क्षेत्र में यह पहाड़ यानी रानीखेत फैला हुआ था। The train was slow, ट्रेन धीरे चल रही थी। It means it was a passenger train. And it stopped at all the way station. वे स्टेशन माने रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन। It means it was a passenger train that stopped at the every stations. At every stop I swung open. Swung open का मतलब होता है झटका देकर खोलना। swung मतलब झटका देकर। I किसके है? राइटर के लिए। तो he swung open the door of his compartment. my ही किसमें बोलेंगे? his में राइटर के लिए है। तो I swung open the door of my compartment. compartment माने रेलगाड़ी का डिब्बा। रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को झटका देकर मैं खोल देता था। एंड वॉच द प्लेटफॉर्म, और फिर नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर कर टहलता था। तो राइटर जो है बरेली से दिल्ली से बरेली तक की यात्रा ट्रेन से, और बरेली से रानीखेत की यात्रा कार से कर रहा है। और जो ट्रेन थी वह पैसेंजर ट्रेन थी, रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। तो इस बात को बताया इस पैराग्राफ में राइटर ने। अब हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The writer tells that he was traveling from New Delhi to Ranikhet. He was traveling from New Delhi to Bareilly by train and Bareilly to Ranikhet by car. Ranikhet was an old British station. It was located at just opposite side of the Himalayas, and the stretch of this hill station was near about 120 miles and 6,000 foot on the surface of sea water. And the stretch and the peak of snow
down from the platform, sorry, on the platform and walked down. At every stoppage, he opened the door of the compartment and walked. Sometime when the train starts again or horns, he boarded in the train again. Clear? अब सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं. The platform was packed. पैक्ड माने भरे पड़े. यहाँ पैक सबसे पैक था, भरे पड़ा. तो किस प्लेटफॉर्म किससे पैक हो सकता है? लोगों से. The platform was packed with people. लोगों से भरा पड़ा था. लोग कैसे थे? आगे बता दिया जाए इस करके. सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रिस्ट माने पुजारी, सोल्जर्स माने सैनिक, पोर्टर्स माने कुली लोग, बेगर्स भिखारी लोग, हाकर्स फेरी वाले. यानी जो ट्रेन द प्लेटफॉर्म पर पैक्ड विद द पीपल. देयर आर पीपल ऑफ ऑल कास्ट, ऑल कैटेगरी, such that Hindu, Muslim, hackers, priest, etc. Almost everyone was barefoot. Barefoot माने नंगे पैर. Then the writer, in 1950, the writer had come to India. At that time, the people of India were very poor. They had no money to purchase slipper or shoes. They were barefoot. वे नंगे पैर थे. Dressed पहने हुए थे. All those white garments, and these people were dressed use white garment. यानी ढीले ढाले सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे. I asked, मैंने पूछा होगा. At least 3 people, कम से कम 3 लोगों से. Again the writer tells that he talked at least 3 people, but they didn't know how to speak in English. It was 4th man that knew how to speak in English. Again the writer tells, I could find one. It was the 4th person that the writer could find that spoke English. He would talk and the writer talked with him on the hours of prayer. वर्ल्ड में संसार से जो करंट अफेयर के तत्काल मामले थे, मुद्दे थे, जैसे इस समय जो है कोरोना का मुद्दा है, उसी तरह से जो मुद्दा उस समय तत्काल का था, उस मुद्दे पर वो बात कर रहा था. तो द राइटर वाज टॉकिंग ऑन द वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक प्रधान टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, द न्यूज ऑफ द डे, उस दिन के समाचार पत्र में जो महत्वपूर्ण न्यूज छपे थे, उस पर वह राइटर उस व्यक्ति से बात कर रहा था. तो द राइटर वाज टॉकिंग टू द पर्सन ऑन द करंट अफेयर एंड द करंट टॉपिक ऑफ द डे इन द न्यूज वाज प्रोड्यूस्ड. In this way, the writer was trying to know the opinion of Indian people. What is the opinion of Indian people after the partition between India and Pakistan in 1947? Because the writer had come to India in 1950 and he wanted to know the feelings of Indian people taking the freedom. To get a feel of the pulse of the nation. Dear student, यह एक फेज है. इस फेज का अर्थ होता है कि राष्ट्र के लोगों के मन में चलने वाली भावनाओं को जानना. टू गेट माने प्राप्त करना, फील माने फीलिंग को, आप द पल्स जो धड़कनों में चल रही है, आप द नेशन राष्ट्र की धड़कन में जो भावनाएं चल रही है उसको जानना. यानी हमारे देश के जो लोग थे उनके मन में कौन सी भावनाएं चल रही थी, इस चीज को राइटर जो है जानने का प्रयास कर रहा था. तो द राइटर वाज चेकिंग द ओपिनियन ऑफ इंडियन पीपल एंड द feelings of the Indian people. What is going
ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। जो सरकारी दृष्टिकोण है, जो आधिकारिक दृष्टिकोण है, सूचना है, उसके खिलाफ आम लोगों की क्या धारणा है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, द राइटर वाज